Dear students, I hope you're all doing fine, having a great quarantine time back at your home. I hope your family, your acquaintances, your relatives, everyone is safe from this pandemic. Well, we now see a downward trends of the cases and the surge has now been eased in Pakistan. So let's just hope that we soon recover out of this pandemic. Well, before starting today's lesson, I have a small message for everyone. We have arranged this distance learning program just for the sake of your betterment, so that the journey of your academic life could not be hampered or affected anyhow. So I request you all that any assignment that is being assigned to all the students, please turn them back to me as soon as you can, so that the procedure of your learning doesn't halt anywhere during this course of journey. So this is my request for everyone that please do attend your video lessons on time and do attempt those worksheets that are related to those video lessons as well. Now, coming back to the lesson, as we all know that we had started the topic accounting basics, and in the previous lessons, we had been going through the ledgers that are prepared in two different formats. One is the sales ledger and one is the purchase ledger. Now, being very frank, class, this is one part of the accounting basics. Though in your past papers and your syllabus, you have a separate topic named as books of prime entry, but here we will study books of prime entry as a part of the accounting basics. All right. Now, what is the concept behind books of prime entry? I would like to recall the accounting cycle. Accounting cycle has been crucial for us to understand the complete double entry procedure. Class, whenever a transaction occurs, what happens? Whenever a transaction occurs, whenever we used to have a small business, this transaction was first recorded in a journal. Like whatsoever was the transaction, without categorizing it, it was simply recorded into a journal. और जर्नल में हम क्या करते थे? डबल एंट्री पास करते थे, डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट्स को पास करते थे. I told you in your previous levels and O1s and O2s as well, that whenever a business expands, the scalability is now at a far higher level. Under those circumstances, it is not productive for a business to have all its transaction into one journal. And for that purpose, what happens? The accountancy framework has provided us with an option of books of prime entry. Now, what does this imply over here? That whenever a transaction occurs, you categorize that transaction and then post it into the books of prime entry. और उसके बाद वही जो हम procedure normally follow करते हैं, books के बाद उनके ledgers बने transactions के, ledgers के बाद the trial, and after the trial balance has been constructed, we are then required to prepare the financial statements. Well, this is the complete accounting cycle that we usually follow. Now, we mostly know about everything. This is something new. You have studied it in your O1s and O2s, but obviously, as a part of the exam preparation and from the exam point of view, it is now imperative for us to study it individually. So let's see what are books of prime entry. Well, I told you one thing. Whenever a business enhances its scale of operations, what happens is that we do not record all our transactions into one journal. Instead, what we do is we make different categories.
Now, obviously, those categories are made on the basis of the transactions, right? हो क्या रहा है basically, in easy words, कि आपने ट्रांजैक्शन की कैटेगरीज बना दी और उस कैटेगरी के लिए आपने एक डे बुक बना दी कि अगर ये वाली ट्रांजैक्शन होगी तो वो इस डे बुक में रिकॉर्ड होगी, अनदर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन उसके लिए सेपरेट डे बुक एंड सो ऑन. लेट्स सी हमने कितनी कैटेगरीज बनाई हुई हैं. ट्रांजैक्शंस की जो पहली कैटेगरी है दैट इज योर क्रेडिट सेल्स. बच्चों रिमेंबर वन थिंग, ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी हमेशा इन बेसिस पे बनाई जाती है जिन ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो. मतलब वो ट्रांजैक्शंस जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा दफा अकर हो सकती हैं. डे बुक भी तो आपको उसी के लिए जरूरत पड़ेगी ना, या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसने साल में 3 या 4 बार होना है, अब उसके लिए हम एक डे बुक बना दें, दिस इज नॉट द प्रॉपर थिंग. उसके लिए हमने वनरस ट्रांजैक्शन के लिए भी एक अलग से डे बुक रखी होती है. अच्छा, तो द फर्स्ट कैटेगरी इज क्रेडिट सेल्स. द सेकेंड कैटेगरी इज रिटर्न इनवर्ड्स, जिसको हम अदर वर्ड्स में सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं. द थर्ड कैटेगरी इज क्रेडिट परचेजेस. अब ये सारी क्या है, ये ट्रांजैक्शंस की कैटेगरीज हैं कि अगर क्रेडिट सेल्स हो रही है, रिटर्न इनवर्ड्स हो रही है, क्रेडिट परचेज हो रही है, उसके बाद क्रेडिट परचेज के बाद आएगी आपकी रिटर्न आउटवर्ड्स. ठीक है, दिस इज योर फोर्थ कैटेगरी. द फिफ्थ कैटेगरी जिसके ऊपर एक पूरा टॉपिक है, यू ऑल हैव स्टडीड इट, कैश बुक, ये आपकी फिफ्थ कैटेगरी है. एंड द लास्ट कैटेगरी इज जनरल जर्नल. नहीं, बल्कि यू मेक इट all cash and bank and all other transactions. अच्छा जी, क्लास जल्दी जल्दी I will repeat all the categories of the transactions. Transactions की ये categories हैं: credit sales, return inwards, which is also known as sales return, credit purchases, return outwards, which is also known as purchase return. The fifth category is of all transactions that are related to the cash and bank of a business. And the final category is for all other transactions. अब ये transactions categorize होती हैं, वो obviously हमने judge करना होता है being accountants. Once we are an accountant, जब हमने हर चीज को study कर ली तो we know कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस कैटेगरी में फॉल करेगी. नाउ लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनके लिए हमने कौन कौन सी डे बुक्स बनाएंगी. क्रेडिट सेल्स के लिए वी हैव सेल्स डे बुक. इसका मतलब है अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्रेडिट सेल्स कहां पर रिकॉर्ड होंगी, या एक ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू दिस पर्सन ऑन क्रेडिट, तो अगर आपसे पूछा जाए वो ट्रांजैक्शन किस डे बुक में रिकॉर्ड होगी, तो दैट वुड बी सेल्स डे बुक. उसके बाद रिटर्न इनवर्ड्स, इसके लिए वी हैव रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक. द थर्ड इज क्रेडिट परचेजेस. क्रेडिट परचेजेस के लिए वी हैव परचेजेस डे बुक. फॉर रिटर्न आउटवर्ड्स we have return outwards day book. For the transactions that are particularly relevant to cash and bank of a business, आसान अल्फाजों में अगर मैं बोलूं तो आपकी वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर कैश और बैंक ये दोनों चीजें आ रही हैं, वो सब कहां पर रिकॉर्ड होती हैं? वो रिकॉर्ड होती हैं आपकी कैश बुक में. एंड इन पांचों के अलावा हमने एक कैटेगरी बनाई है जिसका नाम है ऑल अदर ट्रांजैक्शंस. मतलब इन पांचों ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई ट्रांजैक्शन अगर आती है तो वो एक अलग कैटेगरी है, और उस कैटेगरी के लिए वी हैव अ डे बुक व्हिच इज नोन एज जनरल जर्नल. अब नाम सुना सुना आपको लग रहा होगा जर्नल. ये कौन सा जर्नल है?
ये वही जर्नल है जो कि हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को मेंटेन करने से पहले बनाया करते थे। पहले हम सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जनरल जर्नल में रिकॉर्ड कर देते थे, उधर डबल एंट्री पास कर देते थे। बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अब ये हो रहा है कि सिंपली हर ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग डे बुक है, और जिसकी एक कैटेगरी हमने स्पेसिफिकली नहीं बनाई, उसमें आपकी सारी की सारी दूसरी ट्रांजैक्शंस आती हैं और वो रिकॉर्ड की जाती हैं जनरल जर्नल में। और सिंपली जब हम इस डे बुक में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहां से सारे का सारा डाटा कहां पर पोस्ट कर दिया जाता है? इनटू द लेजर्स, टी अकाउंट में जो हम पोस्टिंग करते हैं, वो फिर हम कहां से करते हैं? वो हम पोस्टिंग करते हैं अपनी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, या जिन्हें हम डे बुक्स बोलते हैं। So class, this is the basic background about the books of prime entry. It is pretty much clear that for transactions, for different categories of transactions, we have different day books. उन डे बुक्स में जब हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो उस रिकॉर्डिंग को करने के बाद हम पोस्टिंग करते हैं इनटू द लेजर्स, और उसके बाद फिर एज इट इज हमारा अकाउंटिंग साइकिल चलता रहता है। अब the second important thing over here is the relevance of the day books with the source documents. I hope it is clear to everyone. इसमें जो भी queries होंगी, I'll be taking it at the end of the lesson. Let's move on with the same content. क्लास, आप सबको एक चीज याद होगी, रिकॉर्डिंग इन डे बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स का आपकी डे बुक्स के साथ क्या ताल्लुक है? इस चीज को ना हम स्टडी करते हैं ट्रेड साइकिल में, राइट? अच्छा, ट्रेड साइकिल था क्या? एक सप्लायर है, आई होप यू ऑल नो सप्लायर कौन होता है? द सेलर ऑफ द गुड्स, ठीक है? ये जब भी गुड्स सेल करता है क्रेडिट पे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो ये एक डॉक्यूमेंट भी जनरेट करता है, जो कि इसके लिए क्या होगा? सेल्स इनवॉइस, राइट? और इसके लिए कस्टमर के लिए दिस डॉक्यूमेंट वुड बी परचेज इनवॉइस, ठीक है? इनवॉइस बेसिकली एक ही डॉक्यूमेंट होता है, उसकी एक कॉपी सप्लायर भेज देता है कस्टमर को रिकॉर्ड के तौर पे। ये हम बात कर रहे हैं क्रेडिट सेल्स की। अच्छा, अब बेटा एक चीज तो वाजिया होगी कि अगर आप क्रेडिट सेल्स कर रहे हो, आपकी जो ट्रांजैक्शन है, मैं यहां पर रूल लिख देता हूं, योर ट्रांजैक्शन, द ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट सेल, तो उसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा वो क्या होगा? उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा सेल्स इनवॉइस। मतलब जब भी आप गुड्स क्रेडिट के ऊपर सेल करेंगे, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा सेल्स इनवॉइस, एज इट इज एविडेंट ओवर हियर। इट इज रैशनल, इट इज बेसिकली लॉजिकल। अच्छा, अब इस कस्टमर ने भी ऑब्वियसली परचेजेस की थी, इसने सेल किया तो इसने परचेज किया, तो दैट मींस he or she has purchased goods on credit. So whenever there is a transaction which is a credit purchase, for that credit purchase the source document is purchase invoice. Invoice बेटा, I'll repeat it again, होता एक ही डॉक्यूमेंट है
सप्लायर के लिए इट इज अ सेल्स इनवॉइस, कस्टमर के लिए द सेम डॉक्यूमेंट इज नोन एज द परचेज इनवॉइस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ये दो ट्रांजैक्शंस होगी। अच्छा, साइकिल को रिपीट करते हैं। कस्टमर को गुड्स पसंद नहीं आए, उसने वापस भेज दिए। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर। अब आई टोल्ड यू in the lessons that were held 2-3 videos earlier कि कस्टमर जब भी गुड्स वापस भेजता है तो एक वो नोट भेजता है जिसका नाम है डेबिट नोट। ठीक है, कस्टमर गुड्स के साथ सप्लायर को क्या भेजता है? डेबिट नोट, जिसमें वो बताता है सप्लायर को कि हाँ भी मैंने तुम्हें डेबिट कर दिया इतने इतने गुड्स की वैल्यू से। ठीक है, वो वापस आ गया यहां पर, राइट? अब जब सप्लायर उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो सप्लायर कंफर्मेशन के तौर पे वापस कस्टमर को एक नोट भेजता है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट नोट, जिसमें सप्लायर इज बेसिकली इंटीमेटिंग द कस्टमर कि हाँ मैंने भी अपने रिकॉर्ड्स में तुम्हें क्रेडिट कर दिया। अब कस्टमर के लिए वो रिटर्न आउटवर्ड थी जिसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो दैट मींस जब भी आपकी कोई ट्रांजैक्शन होगी जिसमें आप रिटर्न आउटवर्ड्स कर रहे हैं तो रिटर्न आउटवर्ड्स के लिए योर सोर्स डॉक्यूमेंट इज डेबिट नोट। आपने रिटर्न आउटवर्ड्स किए कस्टमर ने, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या था? दैट वाज डेबिट नोट। सप्लायर के लिए ये क्या है? सप्लायर के लिए इट इज रिटर्न इनवर्ड्स। और सप्लायर ने कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया? क्रेडिट नोट। दैट मींस व्हेन एवर अ बिजनेस फेसेस रिटर्न इनवर्ड्स तो उसके लिए उसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो होगा क्रेडिट नोट। आई वुड रिपीट द सेम थिंग्स। Whenever we have credit sales, source document is sales invoice. Whenever we have credit purchases, the source document is purchase invoice. Return outwards के लिए we have debit note. Return inwards के लिए we have credit note. इसको अच्छी तरह से memorize करें because ये एक ऐसी चीज है जो कि एग्जामिनर काफी हद तक आपसे टेस्ट करता है, राइट? वेल, आई होप दिस thing is clear to everyone as well. Well, not taking much of the time, I have just one more concept to initiate right now. उसको देखते हैं, उसके बाद we'll be ending up today's lesson. Discounts, a very important topic. Let me tell you, आपकी MCQs, काफी MCQs ऐसे हैं जिसमें डिस्काउंट से रेलेवेंट बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। Now, for that purpose, you need to know that how many types of discounts you might have to encounter in your accountancy framework. Well, there are two types of discounts, starting with the trade discount and जो डिस्काउंट आप पढ़ते रहे हैं since your O1s, since we commemorated the topic cash book, that is cash discount. इसकी तरफ बाद में आते हैं। Let me just first talk about trade discount. Trade discount होता क्या है? A discount offered on the bargain of trade. ठीक है? It is not a part of the accounting records. बेटा दो इसके बारे में चीजें याद रखनी है ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। ये एक ऐसा डिस्काउंट है जो कि ऑफर किया जाता है ट्रेड की बार्गेन के ऊपर। बार्गेन करते हुए आप जो डिस्काउंट ले लेते हो ना, वो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है। मतलब वो वाला डिस्काउंट जो कि किसी भी बिल के ऊपर मेंशन नहीं किया जाता। ठीक है? अच्छा, बिल पे हो सकता है ये शायद आ जाए, लेकिन ये आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं आता। कैसे? फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कस्टमर आया, आपने उसको अपने गुड्स के लिए कोट किया $1000।
कस्टमर ने कहा नहीं यार पैसे छोड़ो थोड़े से, आई नीड सम रिडक्शन, तो आपने क्या किया कि यार चलो ऐसा करो 10% का डिस्काउंट ले लो। आपने जब उस कस्टमर के लिए एक इनवॉइस बनाया तो 1000 के ऊपर जब आपने 10% डिडक्शन की तो बिल बना 900 का। बिल कितने का बना? 900 का। दैट मीन्स आपके अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर कौन सी फिगर ट्रांसफर हुई है? द फिगर दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड इज 900। इसका मतलब है ये जो 100 का डिस्काउंट है ये आपकी इनवॉइस तक रह गया, इट हैज नो लिंक विद योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसलिए रिमेंबर, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी किसी भी डबल एंट्री में नहीं आएगा, इट वोंट बी फाउंड इन एनी ऑफ द डबल एंट्रीज। अच्छा, द सेकेंड थिंग इज कैश डिस्काउंट। Cash discount are of two types. One is discount allowed and the other is discount received. Now, before we study these two discounts separately, majority of you will be knowing its meaning as well. मैं बता दूं कि cash discount actually होता क्या है. A discount which is offered or received whenever cash is being paid or received. बेटा जब भी आपके बिजनेस में कैश की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, या आप कैश पे कर रहे हो किसी को या कैश किसी से रिसीव कर रहे हो, उस टाइम पर जो डिस्काउंट दिया जाता है या लिया जाता है, आइदर इट इज अलाउड या इट इज पेड, वो डिस्काउंट आपका कैश डिस्काउंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहां पे बात की थी कि बिल बना कितना? 900 का, ठीक है। अब ये 900 देते हुए भी ना आपके कस्टमर ने कहा यार ऐसा करो मुझे इसमें से $50 छोड़ दो, ठीक है। अब ये जो $50 900 के बिल में से एक ऐसी अमाउंट जो कि आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आ गई है, उस अमाउंट के ऊपर भी अगर आप कुछ पैसे छोड़ देते हो ना, ये वाला डिस्काउंट आपका कैश डिस्काउंट है। दिस इज योर कैश डिस्काउंट। ये कब अराइज हो रहा है? ये अराइज तब होता है whenever cash is being paid or received। और मैं एक और इसकी बात बताता चलूं, it is a part of your accounting records, right? और ब्रीफली अगर मैं इनके बारे में बता दूं कि डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डिस्काउंट ऑफर्ड या फिर गिवन बाय अस टू द कस्टमर, जो कि हम कस्टमर को अलाउ करते हैं। और डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड बाय अस फ्रॉम द सप्लायर। सिंपल, ये इनका डिफरेंस है। This is all about discounts. Well, class, I hope the discounts, the books of prime entry, source documents, all these things, they are quite in a convenient manner clear to everyone. Well, I don't have a plan to upload any worksheet for today's lesson because it was just a simple background of the content that is required to be learned. But obviously, I'll be having worksheets in the next lessons. और बल्कि नेक्स्ट लेसन में विल बी हैविंग अ प्रैक्टिस सेशन इन द वीडियो एज वेल। वेल, फॉर एनी काइंड ऑफ एम्बिग्विटी और क्वेरीज, आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट 5 minutes. Have a complete overview of the video lesson for today. I'll see you shortly for your question and answers. Thank you very much.